ہم کچھ بول رہا ہے آپ سے بہرام خان، ہمارا آپا ایسا نہیں تھا، آپ کیوں نہیں بولا ان کے لیے؟ وہ بری طرح سے بپری ہوئی اپنے ہاتھ اس کی گریف سے چھڑاتے اسے پیچھے دھکیل گئے۔ بہرام نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں بینڈیج پڑی ہوئی تھی۔ تمہیں ان جھمیلوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے گل بہار خان، یہ میرا اور میرا بیوی کا معاملہ ہے، اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی یا نہیں، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی مجھ سے اس بابت سوال کرے۔ وہ لب بھینچ کر بولا۔ گل بہار کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، آنکھیں الگ رونے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں۔ اب بچہ نہیں رہا، اب سب جاننا چاہتا ہے، بھی تمہارا بیوی ہے۔ پہلا ہم کو بتاؤ تم کس سے عشق کرتا تھا؟ گل بہار اس کے منع کرنے کے باوجود بھی چیخ کر بولی تھی۔ اس کی برداشت سے باہر تھا کہ اس کی مرحوم بہن کے کردار پر سوال اٹھایا جائے۔ لازماً بہرام خان زادہ ہی کسی دوسری عورت کے عشق میں مبتلا تھا جس کا الزام اس کی بہن کے سر لگایا گیا۔ بہرام نے بغور اسے دیکھا، سرخ آنکھیں، لرزتے لب، سرخ ہو رہی ناک، بکھرے بال، وہ سراپا حسن تھی، اپنی خوبصورتی سے ناواقف۔ وہ ڈھیروں سوال لیے اس کے اوپر کھڑی تھی۔ بیوی ہو تم، پہلے اچھی بیویوں والی بیوی ہو تم پہلے اچھی بیویوں والی ذمہ داریاں نبھانا سیکھو گل بہار خان، سیکھو کیسے شوہر کو خوش کیا جاتا ہے، کیسے کھانا بنا کر اس کو پروسا جاتا ہے، کیسے ایک عقل مند بیوی کی طرح ہر لمحے صبر کیا جاتا ہے۔ تم جب یہ سب کچھ سیکھ جاؤ گی تب بہرام خان زادہ تمہیں خود بتائے گا کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے اور اس کی بیوی کا عاشق کوئی تھا یا پھر وہ خود۔ کمر پر اس کے ہاتھ کی گریف سخت ہوتی جا رہی تھی۔ گل بہار کی خوبصورت آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہا، وہ یکٹک اسے گھور کر رہ گئی تھی، اور بہرام خان زادہ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ دیکھ کر الگ اشتعال میں تھا۔ آپ ہم کو مت سکھاؤ ہم کیا سیکھے کیا نہیں، آپ پہلے خود سیکھو کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے یہ سیکھو آپ۔ بات بات پر ہم سے لڑنا بند کر دو خان، ہم جان سے مار دے گا تم کو۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وہ اس قدر طیش میں بولی کہ بہرام خان زادہ کی آنکھیں تحیر کے مارے حد سے زیادہ پھیلی۔ وہ اپنے شانوں تک آتی اس نازک سی جان کو سرتا پیر گھورتے اس کے نزدیک ہوا، جس کی آنکھوں میں آج کوئی خوف کوئی ڈر نہ تھا۔ انٹرسٹنگ میری جان، تمہارا یہ روپ زیادہ دلچسپ ہے، بس خود کو ایسے ہی مضبوط رکھنا، تمہیں توڑنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے اس کے کان کے نزدیک جھک کر اپنی جھلستی سانسوں کے بیچ بولا۔ گل بہار خان نے پل بھر کو آنکھیں میچی اور گہری سانس بھری۔ چلو میری بہادر بیوی، ایک ساتھ سوتے ہیں۔ گل بہار خان کی جھکی ٹھوڑی کو اٹھاتے وہ سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ گل بہار خان وہیں اسٹیل ہوئی۔ اس کے یوں رکنے پر بہرام خان زادہ نے مڑ کر اسے سرد نظروں سے دیکھا، جس کی ہمت شاید ختم ہو گئی تھی۔ ہم نے پری کو نہیں مارا تھا خان، بس دبا دیا تھا۔ زندگی اور موت تو خدا کا ہاتھ میں ہے، پھر بھی ہم تمہارا ظلم اس لیے سہ گیا کہ تم غصہ میں تھا، مگر اب ہم کو غلطی سے چھونا بھی مت ورنہ تمہارا لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سفید دانت پیستے وہ ہررا کر بولی تھی۔ بہرام خان زادہ کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے، مغرور نقوش میں سرخیاں تیرتی تیزی سے گلی تھیں۔ یہ بار بار دھمکی کس بات کی دے رہی ہو مجھے؟ ہم دھمکا نہیں رہا تم کو، آگاہ کر رہا ہے۔ وہ دوبدوس پاٹ لب و لہجے میں بولی۔ اب پیچھے ہٹو، ہم کو دوا کھانا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیل گئے۔ بہرام خان زادہ جھنجھلاہٹ اور طیش کے عالم میں اس کی پشت کو گھورتے تنفن کرتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کہیے کیسے آنا ہوا سکندر خان؟ بیٹھک میں داخل ہوتے وہ صوفے پر براجمان سکندر خان سے مخاطب ہوا، جس کی گہری سی آنکھوں میں غصہ بھرا پڑا تھا۔ ہمارا ایک بیش قیمتی ہیرا کھو گیا ہے ذرا خان، اور ہم کو اطلاع ملا وہ ہیرا تم نے چوری کر کے لے گیا ساتھ۔ ہم نے سوچا خیر کچھ دن دل بہلا لے تم، پھر ہم اپنا ہیرا ساتھ لے جائے گا۔ سکندر خان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سرد لہجے میں کہا۔ ذرا خان زادہ کی سنجیدگی بھری نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں۔ تو پھر تو آپ نے غلطی کر دی سکندر خان، بیش قیمتی ہیروں کو کھویا نہیں کرتے، ورنہ کوئی میرے جیسا قدردان انہیں چرا کر لے ہی جاتا ہے۔ لبوں پر یک طرفہ مسکان سمیٹے وہ دلکشی سے مسکرا پڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے سکندر خان کا چہرہ آگ کی بھٹی کی مانند سرخ پڑا۔ کسی کا اتنا جرأت نہیں جو ہمارا ہیرا چرا کر لے جائے تو ہم اس کو پھاڑ کر رکھ دے گا۔ سکندر خان گرجا تھا۔ ذرا خان زادہ نے خفیف سا مسکراتے ہوئے سر نفی میں جھٹکا۔ پھر دیر کس بات کی ہے، پھاڑ ڈالیے خان زادہ صاحب، کیونکہ آپ کا بیش قیمتی ہیرا سچ میں ذرا خان چرا بیٹھا ہے۔ اب کی بار اس نے ہلکی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے آنکھ دباتے بے باکی سے کہا۔ سکندر خان بری طرح سے
सिकंदर खान बुरी तरह से बिलबिलाता हुआ अपना सब खोते उठा। दूर रहकर बात करो तुम सिकंदर खान, वरना हम तुमको जान से मारने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। बख्तियार खान एकदम से उसका गिरेबान जकड़कर उसे ज़रक खानज़ादा की तरफ जाने से रोक चुका था। ओए खबीस का बच्चा, हमारा लाला का गिरेबान छोड़। सिकंदर खान का छोटा भाई धाड़ते हुए बख्तियार खान की तरफ बढ़ा था। गाली मत देना समंदर खान, वगरना हम तुम्हारा लाला को बाद में तुम्हें पहले जान से मारेगा। ज़रा खानज़ादा उसके गाली देने पर बेफर कर उठ खड़ा हुआ। हम तुमको आग लगा देगा खान। सिकंदर खान धाड़ा, शौक से लगाना, मगर मिट्टी का तेल इस्तेमाल मत करना। वो क्या है ना, मुझे उससे एलर्जी है। नाक चढ़ाते हुए अब उसकी धमकियों को मजाक में उड़ा रहा था। तुमको हम देख लेगा खान। शहादत की उंगली उठाए वो गरजा था। अभी जी भर कर देख लो सिकंदर खान। वैसे आपस की बात है, मेरी प्यारी बीवी तरखानी के मुताबिक मुझसे हसीन मर्द इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम भी देखकर अरमान पूरे कर लो, रोकूंगा नहीं मैं। अब की बार वो उसके नज़दीक जाते शानों पर मौजूद ना होने वाली गर्द उड़ाता। उसके चेहरे का रंग उड़ा गया। लफ्ज़ बीवी पर सिकंदर खान का चेहरा धुआं धुआं हुआ। बीवी? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। उसे लगा था कि ज़रा खानज़ादा दरखानी की खूबसूरती से घायल हो गया है, मगर उसको बिल्कुल भी मालूम ना था कि वो उससे निकाह कर चुका है। मजाक खत्म हुआ सिकंदर खान, अब मुद्दे की बात सुनो। जो लड़की तुम्हारे घर से भागी वो तुम्हारी वन्नी थी। जो लड़की अब मेरे घर में मौजूद है वो इस खान की इज्जत है, बीवी है वो मेरी। दरखानी की तरफ उठती हर गलत निगाह को मैं नोच कर फेंकने में झिझकूंगा हरगिज़ भी नहीं। वो अपनी जनू खेज निगाहें उस पर गाड़ते एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते बोला, तुम पागल बना रहे हमको। तुम एक लंगड़ा से शादी कैसे? खबरदार खान, बीवी है वो अब मेरी, और तुम खानदानी पठान हो, इसलिए अब तक तुम्हारा चेहरा सलामत है। उम्मीद है अब इज्जत और तमीज़ के दायरे में रहकर अपनी बहन को मुखातिब करोगे तुम। ज़रा खानज़ादा टिका कर उसके मुंह पर जवाब मार रहा था और सिकंदर खान धुआंधार चेहरे से उस मर्द को घूर रहा था। दरखानी के बाप ने तुम्हें वन्नी में उसे दिया था, अब तुम्हारा मामला है उससे। जाओ और उससे जाकर हिसाब निकालो। खुदा हाफिज़ सिकंदर खान। वो कहकर रुका नहीं था। लंबे लंबे डग भरते वो बैठक से निकलता चला गया। क्या ये वाकई खान हवेली का बेटा है? समंदर खान ने मुताज्जुब सी नज़रों से उसकी चौड़ी पूंछ को देखा था। यहाँ आने से पहले वो जिन मालूमात के सहारे यहाँ आए थे, उस हिसाब से अब तक वो लड़की उनके पहलू में होती, मगर यहाँ आने के बाद उन्होंने उसे एक झलक देखा तक नहीं था। हाँ, ये खान हवेली का बेटा है। कुछ सख्त मिजाज है हमारा लाला, इसलिए हवेली वालों से इसका बनता नहीं। बख्तियार खान ने बताना ज़रूरी समझा, जबकि सिकंदर खान और समंदर खान खामोशी से खाली हाथ लौट गए थे। अपनी रिवायतों के तहत वो अब दरखानी को कुछ नहीं कर सकते थे। पठान कबीला में औरत का निकाह अगर एक बार किसी मर्द से हो गया तो वो औरत मुकम्मल तौर पर उस मर्द की होती है और पूरा कबीला उस औरत को इज्जत की निगाहों से देखने का पाबंद हो जाता है। इसीलिए वो दोनों भी खामोशी से लौट गए थे। क्या इरादा है आगे दरक? पढ़ाई तो तुम मुकम्मल कर चुका है। खाने के बाद कहवे का दौर चला था। बख खान गुलालई के साथ एक सिमत बैठी थी, जबकि दरक मुराद खान और यूसुफ खान के साथ बैठा था। मामू जान, मैं सोच रहा हूँ लाला के साथ मिलकर हॉस्पिटल की इमारत तैयार करवा लूँ, फिर उसके बाद मुझे कोर्स के लिए लंदन जाना है। पीछे से लाला मेरे वापस आने तक हॉस्पिटल संभालेंगे। दरक खानज़ादा ने संजीदगी से अपने मामू को अपने फ्यूचर प्लान से आगाह किया। बहुत अच्छा बात है बेटा, हमारा किसी किस्म का मदद चाहिए हुआ तो हमको बताना। यूसुफ खान ने मुस्कुरा कर कहा। वो बातों में मसरूफ़ थे जब गुलालई बख को अपने साथ लिए हवेली के बैरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। बख खान, ये देखो, ये हमारा सबसे प्यारा घोड़ा है। उसने एक तबेले में ले गई वो उसे एक तबेले में ले गई। इतने सारे घोड़ों को देख बख के चेहरे पर पुरजोश तासुरात उभरे। गुलालई, ये तो बहुत प्यारे हैं, क्या तुमने कभी इनकी सवारी की है? वो पुरजोश से पूछ रही थी। गुलालई ने सुनते मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया। हाँ, सारा घोड़ा हमारा बाबा अपना शौक से लाया, और ये वाला, इसको देखो तुम, ये वाला ज़मर है, और ये दरक का घोड़ा, वो जब भी यहाँ आता है इसका सवारी लाजमी करता है। गुलालई एक स्याह रंग के घोड़े को छूते इश्तियाक से बक को बता रही थी, जिसकी खूबसूरत आंखों में ढेरों रंग उमड़े थे। वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसने ज़मर को छुआ, वो फुंकारते हुए सर से उसे दूर होने का इशारा कर गया। बख्त डर के मारे खौफजदा सी पीछे हुई। तुम ठीक है ना बख्त? ये बड़ा ज़िद्दी है, दरक के अलावा इसको कोई हाथ लगाए इसको सख्त नापसंद है। गुलालई उसके करीब जाते बोली तो बख्त ने गुस्से भरी नज़रों से उस घोड़े को घूरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो दोनों? दरक की गंभीर आवाज़ पर दोनों एक साथ पलटी। दरक, हम तुम्हारा औरत को तुम्हारा ज़मर से मिलवा रहा है, मगर ये ज़मर इसको हाथ नहीं लगाना दे रहा। गुलालई ने आसूदगी भरी मुस्कान लबों पर सजाए कहा। तो खानज़ादा दरक की गहरी नज़रें अब उस नाजुक वजूद पर टिकी थीं जो होंठ कुचलते ज़मीन को घूर रही थी। दरक को इग्नोर करने की वो पूरी कोशिश कर गई थी। दरक भारी कदम उठाए आगे बढ़ा तो बख्तावर खान अपने जैसे ज़िद्दी की सवारी करना
तो बख्तावर खान अपने जैसे ज़िद्दी की सवारी करना चाहती हैं। गुलालई वहाँ से जा चुकी थी। उसकी पुश्त को देखते वो पुश्त पर हाथ बांधे तंज़ अंदाज में बोला था। बख्त ने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा। मैंने कब कहा कि मुझे इस पर सवारी करनी है? तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारी तरह अजीब है, तुम ही बैठो इस पर। वो तड़प पड़ी थी। हकीकतन उस घोड़े का यूं गुस्सा करना बख्त को बुरा लगा था। दरक खानज़ादा की नज़रों में उसका एक मर्तबा था, एक मकाम था, एक इमेज थी जो उस घोड़े ने बुरी तरह बिगाड़ दी थी। वो अपनी रोब और दबदबे से उसे डरा कर रख रही थी, और ऐसा बख्त खान को लग रहा था। उसके बरक्स उसकी बात पर दरक खान के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी। 2 कदम वो उसके नज़दीक हुआ था। बख्त खान उसके बराबर आई थी। मगरूर नकूश में घुलती सुर्खियाँ, खूबसूरत आंखों में झुंझलाहट और नाजुक लबों पर बिखरी सुर्खियाँ, सब कुछ उस माहौल को मज़ीद ख्वाबनाक बना गया। दरक उसे इस्तेहकाक भरी नज़रों से देखते अचानक अपने नज़दीक खींचते सीने में भीग गया। ये दरक खानज़ादा की पसंद है, और तुम दरक खानज़ादा की बीवी। तारुफ करवाना तो लाजिम है ना मिसिस खानज़ादा। कान के करीब उसकी जानलेवा सरगोशी पर वो लम्हों में सूख पड़ी, और सबसे बढ़कर उसकी नज़रें बख्त को अजीब शर्म में मुब्तला कर रही थी। कोई देख लेगा दरक, छोड़ो मुझे। वो बुरी तरह से खिफ़्फ़त का शिकार हुई थी। उसके शानों को जकड़ते वो फासला कायम करते बोली। दरक खानज़ादा के कैलोन की तेज़ महक बख्त खान की सांसों में घुलती जा रही थी। तो कमरे में ले चलता हूँ, वहाँ तो कोई नहीं देखेगा ना? वो बाकायदा ढिठाई से कहता उसके दहकते गाल पर लब रख गया। उसके होंठों के साथ साथ मूँछों की चुभन पर वो धड़कते दिल के साथ आंखें सख्ती से मीच गई। दरक खानज़ादा बड़ी वारफ्तगी से उसके चेहरे के तासुरात को देख रहा था। चलो आओ, मैं तुम्हें ज़मर से मुलाकात करवाता हूँ। वो बख्त का हाथ बड़े इस्तेहकाक से थामते आगे बढ़ा था, जबकि बख्तावर खान अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। पहली बार कोई उस पर यूं हक जता रहा था। घबराना तो बनता था उसका। ज़मर, इनसे मिलो, ये मेरी बख्त, जैसे तुम मेरे लिए ख़ास हो वैसे ये भी मेरे लिए ख़ास है। वो उसे साथ लगाए ज़मर से कह रहा था, जो दरक को गौर से देख रहा था। दरक ने बख्त का हाथ थामे ज़मर के सर पर रखा तो वो मुंह से आवाज़ें निकालने लगा। बख्त डर के मारे दरक के सीने में चेहरा छुपा गई, जिस पर उसने लब दबाए उसकी पुश्त को सहलाया। वो दोस्ती कर रहा है बख्त, डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। दरक ने नरमी से कहते उसके सर पर बोसा दिया, जो खुद को यूं उसके सीने से लगा पाते झट से उससे दूर हुई थी। दरक ने सर्द सांस भरते उसे घूरा, जो अब फिर से फासला बढ़ाई खड़ी ज़मर को हल्के से छू रही थी। चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देख दरक खानज़ादा भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। निकाह के बाद वो पहली बार यूं मुस्कुराता हुआ देख रहा था उसे। खुश होना तो बनता था उसका। ए लड़की, बात सुनो हमारा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हवेली के अंदरूनी जानिब बढ़ रही थी, जब पुश्त पर किसी गैर मर्द की चिल्लाती हुई आवाज़ पर बेसाख्ता रुकी थी। आंखों में हैरत समेटे वो एकदम से मुड़ी। कौन हो तुम? मर्दान खाना में बैठो तुम, लाला आता है वहाँ। गुलालई को लगा कि वो लड़का मुराद खान का दोस्त होगा, जब भी वो संजीदगी से कहती वापस मुड़ी, हम तुम्हारा लाला वाला से नहीं मिलना आया, समझा तुम? हम अपना भाई दरक खानज़ादा से मिलना है। कहाँ है? उसको भेजो। ज़ैगम खान ने सरता पैर उस छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी पेशानी पर सिलवटें सिमटी हुई थीं। आंखों में झुंझलाहट और गुस्सा बढ़ा था। होगा तुम दरक खानज़ादा का लाला, लेकिन ये हमारा हवेली है, और यहाँ हर मर्द ऐसा मुंह उठाकर नहीं घूमता। इसलिए खामोशी से मर्दान खाने में चला जाओ, वरना हमारा लाला तुम्हारा टांगे तोड़ देगा। वो उसे आंखें दिखाते धमकी आमेज़ लहजे में बोली। ज़ैगम खान बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। सर नफ़ी में झटकते उसने गुलालई की पुश्त को देखा, जो तेज़ तेज़ कदम उठाते जनान खाने के बरामदे से अंदर गुम होती चली गई थी। हम भी देखता है तुम्हारा लाला कैसा हमारा टांगे तोड़ता है। खूबसूरत औरत, मूँछों को ताव देते वो कहकहा मारकर मर्दाने में, मुझे नहीं जाना, आप चले जाएं प्लीज़। नीली आंखों में ढेरों मासूमियत समेटे वो भीगे लहजे में मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। अलमारी में से कुछ ढूंढता दारियान एकदम से पलटा। उसकी गुजारिश को सिरे से नज़रअंदाज करते वो हाथ में पकड़ा सुर्ख दुपट्टा उसके सर पर दे गया। सफ़ेद रंगत पर सुर्ख रंग गजब ढा रहा था। धुला धुला शफाफ चेहरा, सुर्ख बारीक होंठ, वो नीली आंखों वाली मासूम शहजादी ही तो थी। दारियान अब्बास खान ने फिजा में बिखरी दीदम की खुशबू में गहरी सांस भरी थी। सुबह से ही उसके लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो पा रही थी, और उसकी लो देती नज़रें सुबह से ही दीदम को शर्म और घबराहट में मुब्तला किए जा रही थी। परफेक्ट माई ब्यूटी। लब का कोना दबाए वो पुरहिद्दत निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। दीदम की झुकी नज़रें मज़ीद झुक गईं। दारियान अब्बास खान गर्दन को रब करते मुड़ा था। ड्रेसिंग टेबल से कुछ ज़रूरी सामान उठाए वो बेड तक उसके करीब गया। सारा सामान बेड पर रखते वो खुद एकदम से उसके नज़दीक
वो एकदम से उसके नज़दीक झुका था। गहरी ब्राउन आंखों में अपना अक्स देखते दीदम ने झट से नज़रें फेरी थी। मेरी तरफ देखो दीद, वो प्यार से कहते उसकी ठोड़ी से जकड़ते चेहरा उसका अपनी तरफ मोड़ गया। याकूती लबों को सुर्ख लिपस्टिक से रंगते वो बड़ी तवज्जो से अपने काम में मगन रहा। दूसरी तरफ दीदम की घबराहट अरूज पर थी। उसने कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था और आज पहली बार उसका शोर अपने हाथों से उसे सजा रहा था। उसकी हालत शर्म और घबराहट से अजीब तर होती जा रही थी। उसे खुद में सिमटता महसूस करते दारियान भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। झुककर सभी पेशानी पर अपने लब रखते वो पीछे हटा। काजल उठाए वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, दीदम ने झट से काजल उसके हाथ से छीना था। मैं लगाती हूँ, वो जल्दी से कहती काजल लगाने लगी, जब अचानक दारियान ने झपट कर काजल उससे छीना। मैं अपनी बीवी को तैयार कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह शॉल अपने कंधे पर ओढ़े वो शहाना मर्द उसके सामने झुका खड़ा था। कैलोन की तेज़ महक दीदम शाह ज़हन के हवासों पर बुरी तरह से तारी हो रही थी। वो बड़ी एहतियात से काजल लगाते उसका चेहरा हाथों में भर गया। तुम्हें इस मसनूई ब्लशर की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। भूरी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर मौजूदन था। वो गंभीर लहजे में कहता एकदम से झुका। बारी बारी दीदम के दोनों गालों पर अपना लम्स बखेरते वो उसके चेहरे पर बिखरे शर्मो हया के रंगों को महवियत से देखते पीछे हुआ था। सामान वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखते वो दीदम तक आया। एक नज़र उसके पाँव पर डाली जो अब काफ़ी बेहतर थे। दीदम अब चल पा रही थी, मगर फिर भी दारियान उसे पूरी तरह से एहतियात करवा रहा था। अब चलो। अपना भारी हाथ उसकी जानिब बढ़ाते उसने गोया हुक्म दिया। दीदम ने मुल्तजी नज़रों से उसे देखा और फिर सर्द सांस भरते लब कुचलते हुए उठी थी। उसका अपनी सिम बढ़ा हुआ हाथ मजबूती से थामे वो उसके साथ लगी। उसके बच्चों जैसे अंदाज पर दारियान ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। अपने बाजू के हल्के में उसे भरते हुए अब कमरे से बाहर निकला था। अस्सलामुअलैकुम। दस्तरखान पर मौजूद हर शख्स ने मुड़ते उसे देखा। रोशाबा खानम ने कहर बरसाती नज़रों से दारियान की ओर में खड़ी दीदम को देखा, जो गाढ़े सुर्ख रंग की पठानी पोशाक में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। गले में चमकते हुए खूबसूरत नेकलेस ने उनकी तवज्जो अपनी सिम खींची। वो जांचती नज़रों से उसके वजूद का भरपूर जायज़ा ले रही थी, जो शर्माई लजाई सी हुस्न का पैकर बनी उनके बेटे के साथ लगी खड़ी थी। सलाम का जवाब किसी ने भी नहीं दिया था। अलबत्ता सबका मूड दीदम को देखते अच्छा खासा बिगड़ा था। दीजान स्पाट निगाहों से उसे घूरते दस्तरखान से ही उठ गई थी। उनके बाद एक एक करके अब्बास खान समेत सभी मर्द खाना छोड़कर चले गए थे वहाँ से। दारियान के चेहरे पर अब तक सुकून छाया हुआ था। मुलाजमाएँ हैरत और रश्क से दीदम को देख रही थी। कल तक जिस लड़की की मौजूदगी दीजान को हवेली में चुभती थी, आज वही लड़की उनके लाडले पोते की बहू बनकर उनके दस्तरखान पर मौजूद थी। बैठो दीद। गहरी सांस भरते वो पुरसकून सा मुस्कुराया। कुर्सी पीछे को खींचते उसने शानों से जकड़ते दीदम को नरमी से चेयर पर बिठा। दारियान खान, इस गंद की पोटली का यहाँ आना ज़रूरी था क्या? रोशाबा बेगम दबी दबी आवाज़ में गुर्राई थी। दीदम की आंखें उनके सफाक लफ्ज़ों पर बेसाख्ता भीगी थी, जबकि दारियान ने जबड़े भींच डाले। बहराम खान ज़्यादा लब भींच कर वहाँ बैठा रहा था। कल रात से ही गुलबहार खान के रवैये पर वो शदीद मुश्तइल हुआ पड़ा था। फ़िलहाल वो किसी भी किस्म की बहस में नहीं उलझना चाहता था, जब ही चुपचाप वहाँ से निकलता चला गया। गुलबहार खान ने कनखियों से दीदम को देखा, जिसके हाथ लरज़ रहे थे। मासूम सी नीली आंखों वाली दीदम उसे शुरू से ही काफ़ी पसंद थी, मगर दीजान की नाराज़गी की वजह से वो खुद कभी उससे मुखातिब नहीं हुई। मोरे प्लीज़, मुझे सख्त भूख लगी है। क्या चाहती हैं आप? आज भी खाना ना खाऊं? गहरी आंखों में सर्द मोरी के साथ साथ शिकवा भी तैर रहा था। वो जब से लौटा था, रोशाबा खानम ने एक बार भी उसे अपने हाथों से कुछ बनाकर नहीं खिलाया था। वो बचपन से ही माँ की लम्स, उनकी मोहब्बत को तरसता आया था। अब भी वही कुछ हो रहा था सब। रोशाबा खानम ने लब भींच कर टेबल को घूरा, जबकि दारियान अब दीदम की प्लेट भर रहा था। ख़वातीन खामोशी से खाना खा रही थीं, क्योंकि बिना खाना खाए उठने की उन पर कोई रियायत ना थी। उन्हें हर हाल में खाना खा कर ही उठना था, और ये उनके ख़ानदान की रिवायत थी। रोशाबा खानम, गुस्सा मत हो। अब दीदम तुम्हारा बहू है। अब तुम्हें इसको अपना बनाकर बेटा को दुआ देना चाहिए कि जल्द खुदा इनकी गोद भरे। नीलोफर खानम ने मुस्कुराती नज़रों से दीदम के भड़कीले रूप को देखते रोशाबा खानम से कहा। उनकी बात पर दीदम के हाथ की हरकत थमी। चेहरा शर्मो हया से सुर्खनार हुआ।
वहीं दारियान ने सभी को एक नज़र देखते आमीन का, खाना खाओ दीद, तुम्हें दवा भी लेनी है। वो उसे यूं ही बैठा देख तंबी कर गया, जिसने जल्दी से मुंह में निवाला डाला। सबकी चुपती नज़रों के बीच उससे खाना खाना मुहाल हो गया था। थोड़ी देर में एक एक करके सभी खवातीन दस्तरखान से उठ गई थी। अब वहाँ सिर्फ दारियान और दीदम बैठे थे। दारियान अब्बास खान पिछले 1 घंटे से भूख ना होने के बावजूद भी खा रहा था ताकि उसकी बीवी अच्छे से खाना खाए। दीदम सबके उठते ही नज़रें बचाकर आगे पीछे देखते दारियान को देखने लगी। स्याह शॉल में वो काफ़ी जाज़िबे नज़र लग रहा था। दीदम के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुईं। वो अब जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। काफ़ी दिनों से वो बराए नाम ही खा रही थी। आज काफ़ी दिनों के बाद उसने तसल्ली से खाया, ये जाने बिना कि उसके पास बैठे उसके शोर की तमाम तर हिस्सियात बेदार हैं। वो उसकी एक एक हरकत को बड़ी गौर से देख और समझ आए। खा लिया? खाना ख़त्म करते ही वो बड़ी तेज़ी से बोली। दारियान ने उसे हैरत से देखा। अरे वाह, इतनी जल्दी! वो मुतासिर होने की अदाकारी करने लगा तो दीदम खिलखिला पड़ी। उसकी खिलखिलाहट को महवियत से देखते दारियान अब्बास खान ने टिशू से उसके होंठों को साफ करते उसका हाथ थामा। हंसती रहा करो, ज़िंदगी अच्छी लगती हो, वो जज्बात से चूर लहजे में बड़े दिल से बोला। दीदम की नज़रें बेसाख्ता झुकी। उसके चेहरे को वालिहाना नज़रों से देखते दारियान अब्बास खान जगह से उठा। उसका हाथ मजबूती से थामे वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। स्याह आंखों ने नफरत से उस मंज़र को देखा था।